Hello, grade 11th. Welcome to my YouTube channel. Hi, this is your math tutor Nitika. So we were doing complex numbers. Today we are going to discuss about the conjugate of complex numbers. Now, what is the conjugate of complex number? It's quite a new term for you. So let's have its definition. Let Z, as you know it very well, how we represent a complex number. We represent as Z equals to x plus iota y. Whatever you want to write a complex number, you have to write in this form. Z equals to x plus iota y, where x is the real part and the y is the imaginary part. As you know, for example, 3 plus 4 iota. 3 is your real part and 4 iota is your imaginary part. So if you have a complex number z equals to x plus iota y, then z bar is the conjugate of a complex number, right? Z bar is a conjugate of a complex number given by how to write the conjugate of a complex number. This is the main key point, how to write it. First of all, denote we will do in this way, z bar. We will say z bar, or you can say z conjugate. You have two methods to write down to pronounce it, like z bar or z conjugate. Both are right. So what is z bar? It is equal to x minus iota y, right? X minus iota y. What I am going to do in conjugate, I am going to change the sign of the imaginary part, right? Suppose x plus iota y is a journal form. It's not suppose, it is a journal form, x plus iota y. If you're taking a complex number 3 plus 4 iota, which is your imaginary part? Imaginary part is 4 iota. If it is positive, you are to convert in negative sign. If it is negative, you are to convert it in positive sign. I hope I am clear to everyone. For example, I am taking 3 plus 4 iota. See, 3 plus 4 iota is a simple complex number. अब हमने इसका कॉन्जुगेट बनाना है, राइट? तो कॉन्जुगेट इस तरह से लिखेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा बार 3 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट. क्या करना है? 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ही देखना है आपने, रियल पार्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. कॉन्जुगेट टर्म इज ओनली फॉर इमेजिनरी पार्ट. बच्चे क्या करते हैं, रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन अच्छे से देखी नहीं होती. उनका मतलब है कि साइन चेंज करना है, चाहे वो रियल का हो चाहे इमेजिनरी का हो. दिस मिस्टेक कैन बी डन बाय यू ऑल्सो, बट वॉच इट वेरी केयरफुली. यू आर टू कन्वर्ट द साइन ऑफ ओनली इमेजिनरी पार्ट. तो बेटा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 आयोटा. 4 आयोटा का आपने साइन चेंज करना है, तो ये क्या बनेगा? 3 माइनस 4 आयोटा. इट मीन्स 3 plus 4 iota conjugate equals to 3 minus 4 iota. I have taken here so many examples, right? Next question, suppose next example, minus 7 minus 6 iota conjugate. This bar is the conjugate. इसका conjugate लोगे. अब देखो, minus 7 का sign कभी change नहीं करना. minus 7 is as it is, right? And your imaginary part is minus 6 iota, and you are to change the sign of 6 iota, minus 6 iota. It becomes plus 6 iota. ठीक है, तो माइनस 7 माइनस 6 आयोटा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 6 आयोटा. नेक्स्ट इज 2 आयोटा बार. तो बेटा देखो 2 आयोटा बार. अब देखो यहाँ पर रियल पार्ट ही मिसिंग है, रियल पार्ट इज नॉट मैंशनड हियर. सो यू आर टू चेंज द साइन ऑफ ओनली इमेजिनरी पार्ट. यही है हमारी कॉन्जुगेट की डेफिनेशन. तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 2 आयोटा, राइट? अब मैं ले रही हूँ रियल पार्ट, ओनली आई एम टेकिंग रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट नहीं है. तो अगर आपने जीरो का कॉन्जुगेट लेना है, जीरो तो में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो जीरो कॉन्जुगेट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इफ़ यू आर टेकिंग 2 बार, 2 बार मीन्स 2 कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट तो टर्म ही रियल उसकी है, इमेजिनरी पार्ट की, एंड देयर इज़ नो इमेजिनरी पार्ट. सो 2 कॉन्जुगेट इज़ 2, राइट? तो ऑप्शन MCQ में क्या होगा? 2 दिया होगा, -2 दिया होगा, या फिर नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर और 0 ऑप्शन आ सकती है. तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 2. -1 conjugate is -1. As I have said many times, you are to not change the sign of real part. 4 bar is 4, right? Come to some more examples. 3 plus iota conjugate is equal to 3 minus iota, right? Minus 3 plus iota conjugate equals to -3 minus iota. 2 minus 5 iota bar conjugate equal.
equals to 2 plus 5 iota, and 0 plus 5 iota conjugate equals to minus 5 iota. So this was the concept of conjugate, which is very useful in our coming questions, which we are going to do from NCERT miscellaneous exercise, right? The next topic is modulus of a complex number. Let us have modulus of a complex number. Let z equals to x plus iota y is a complex number, right? First of all, you have to take a complex number, and complex number is in the form of x plus iota y. Why all the time I repeat a one thing again and again? Because I wanted that you should learn it very carefully. There should be no mistake from your side while writing the complex number, right? So z equals to x plus iota y is a complex number. Mod z, as you already aware about the modulus function, right, and the absolute value of a function like a number like mod of minus 2 is 2, it is quietly same as in the complex numbers also, right? So modulus of a complex number is defined as mod z equals to square root of x square plus y square. अब इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से, मैं अभी बताती हूँ आपको थोड़ी देर बाद. So mod z equals to square root of x square plus y square. Now what is x? X, you know that x is the real part of a complex number and y is the imaginary part of a complex number. So whenever you want to find the modulus of a complex number, so formula is, so mod z equals to square root of real part square प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. है ना सिंपल, कुछ भी नहीं करना. जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लीजिए, पता कर लीजिए कौन से हैं, और उसके बाद उनका स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिए. दैट विल बी योर modulus of a complex number. So I have taken one example here. If z equals to 3 plus iota, find the modulus of z. So students, from this statement you have to first of all know about the real part as well as imaginary part. So your real part is 3 and the imaginary part is सी आयोटा, राइट. तो आयोटा के साथ क्या पड़ा हुआ है? आयोटा के साथ ऑब्वियस है 1 ही होगा. तो आपका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट इज 1. सो रियल पार्ट इज 3 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 1. So mod of z equals to square root of real part square plus imaginary part square. So it's very simple. 3 square plus 1 square. 3 square is 9, 1 square is 1 and 9 plus 1 is 10. So mod z of 3 plus iota is root of 10, right? Let's have few more examples. फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 प्लस रूट 3 आयोटा स्क्वायर. तो बेटा इन क्वेश्चंस को बड़े तरीके से हैंडल करना है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म में नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हमेशा होगा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में. लेकिन आपको ये क्या गिवन है? ये तो ये वाला नंबर गिवन है x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर. तो सबसे पहले हम इसके स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे, फिर देखेंगे कि जर्नल फॉर्म बन रही है या नहीं. तो आप लिखोगे लेट z इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 आयोटा स्क्वायर. z इक्वल्स टू स्क्वायरिंग कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा ना. अब आयोटा स्क्वायर को क्या पुट करोगे? इट इज़ -1, आयोटा स्क्वायर इज -1. तो ये आपका बन गया -3 प्लस 4 रूट 3 आयोटा. 4 माइनस 3 इज़ 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा. अब आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको अगर इसके साथ कंपेयर करोगे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ, तो x आपको क्या मिलेगा? 1 और y आपको क्या मिलेगा? 4 रूट 3. अब आप इजीली you can find the modulus of a complex number. So mod z equals to, मैं यहाँ पर सीधा लिख देती हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. वैसे तो जनरली स्टूडेंट्स यही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है. तो x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज़ 1, 4 स्क्वायर 16, 16 3 सा 48, 49 एंड 49 का रूट होगा आपके पास 7.
राइट। सो अच्छा, मॉडुलस बेटा कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, आपको पता है, आपने बहुत अच्छे से मॉडुलस फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं अभी आपको क्लियर करूँगी बाय द ग्राफ, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे फोकस करें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चंस आने हैं और उसमें आप मिस्टेक करते हो। तो उसके बाद मैं ग्राफिकली आपको सारा क्लियर करूँगी कि मॉडुलस क्या है और किस तरह से हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, विच वन इज़ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट से पहले हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो ये मॉडुलस जेड आपका आ गया है 7। यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेना, बस इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लाइन सेगमेंट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू फ्यू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्जुगेट, इनवर्स एंड द मॉडुलस, क्योंकि इसमें से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।